My dear student of standard 6th, welcome to you once again, and today we are going to finish chapter number 5, In Search of Peace, Buddha and Mahavir. So friends, in first part we already covered Gautam Buddha. Now in this part we are going to cover another great personality, that is the Mahavir Swami. So let's begin. So as you can see on your screen, Mahavir Swami, below my image you will find. Jainism also has an important place in Indian society like a Buddhism. So like Buddha religion, there is a Jain religion also, and there are total 24 Tiranskar in the Jainism. So they are the 24 Tiranskar that you are supposed to remember. Agams are the main source of knowing about Jainism. According to the text, the first Tirthankar of Jainism is Rishabdev or Adinath. So you have to remember this first Tirthankar of which we are going to say Rishabdev also, and some people are saying them Adinath also. 23rd Tirthankar was the Parsavnath, and Parsavnath was the son of the king Aswasen of Kashi. So those names are very difficult, but you are supposed to be still remember it. He left his home at the age of 30 and became the hermit and preached जैनिज़्म. सो उन्होंने भी अपना घर बार छोड़ दिया था, बट सेम 30 years of age he opposed the Vedic religious and the ritual and the caste system. He gave the preaching of truth, non-violence. Okay, so same like Gautam Buddha, he also don't believe in this religion, rituals and caste system, and इनका भी सच्चाई में नॉन वायलेंस में विश्वास था. He gave the preaching of the truth and non-violence, astray and non-possessiveness. After him, Mahavir Swami was the 24th and the last Tirthankar. We will learn about him. So, in this session, we are going to learn about Mahavir Swami. So, first start with the basic life of Mahavir Swami, which is exactly below my image. You can see. Mahavir Swami was born at the Karnataka Kshatriya dynasty of कुंदग्राम रिपब्लिक ऑफ वजिस यूनियन. ओके, सो ये नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा, एंड रिमेंबर स्पेलिंग ऑल्सो. हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान. ओके, सो उनका नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का, एंड इनका नाम महावीर स्वामी जी का नाम था वर्धमान. ओके, डेट यू आर सपोज टू रिमेंबर. हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द किंग ऑफ द Siddharth was the king of the republic. Mahavir Swami's mother name was Trisla Devi. So father's name is Siddharth, mother's name is Trisla Devi. His elder brother name was Nidhi Vardhan. Okay, so Nidhi Vardhan is brother's name, Trisla Devi his mother name, Siddharth is his father. Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince. So it's a coincidence ये दोनों प्रिंस थे. Thus he acquired the knowledge of many arts. Many arts means खेल कूद, संगीत, डांस एंड आर्चरी, वेपन चलाना, शास्त्रों का ज्ञान लेना, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है. महावीर स्वामी वॉज ऑल्सो अ प्रिंस एंड दस एक्वायर द नॉलेज ऑफ द मैनी आर्ट्स. ही वॉज मैरिड टू द प्रिंसेस यशोधा. सो यशोधा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से इनकी शादी होती है. हिज डॉटर नेम वॉज प्रियदर्शनी. सो बेसिकली उनके सन का नाम था राहुल, एंड यहाँ पर इनकी एक डॉटर थी, एंड डॉटर का नाम था प्रियदर्शनी. ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या होता है. लिविंग होम एंड साधना. सो अगेन ही ऑल्सो लेफ्ट हिज होम, एंड ये भी साधना करने लग जाते हैं. ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30. सो सेम चीज़ें जा रही हैं, एज भी 30 है. ओके, इन सर्च ऑफ नॉलेज ही लिव्ड अ लाइफ लाइक द भिक्षु. भिक्षु यानी जो मांग के खाते हैं, एंड डिड द हार्ड्स पेनेंस फॉर 12 years. तो इनका जो पेनेंस था वो लगभग 12 साल तक चलता है. एंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रिजुपालिका, आई थिंक ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ. एंड ही अटेंड द हाइएस्ट नॉलेज, दैट इज़ केवल ज्ञान. एज ही एक्वायर्ड हिज माइंड एंड सेंस, ही वॉज कॉल्ड जिन. ओके, सच ग्रेट माइटी वर्धमान केम टू बी नोन एज द महावीर. सो उनको भी ज्ञान प्राप्त होता है,
एंड फिर जैसे उनका नाम चेंज होता है गौतम बुद्ध में, सेम थिंग इनका नाम भी महावीर में चेंज हो जाता है। अब इनकी हम प्रीचिंग्स देख लेते हैं क्या क्या है। सो लाइक बुद्धा महावीर स्वामी, लाइक गौतम बुद्ध महावीर स्वामी टू बिलीव डेट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फियर एंड सोरो, मतलब हर जगह लोग डर रहे हैं, उनको दुख है। ही रिजेक्टेड गॉड एग्जिस्टेंस, उन्होंने तो मतलब भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया। ओके, हिज टीचिंग आर द डॉक्ट्रिन ऑफ द त्रिरत्न एंड द प्रीचिंग ऑफ द होल फाइव वोव्स। उनकी जो मतलब उनकी जो उनकी जो श्रेणी होती है, जो मतलब उनका जो टीचिंग का स्टाइल है, उसको हम लोग त्रिरत्न कहते हैं। एंड इन्होंने लोगों को 5 चीज़ें कहने बेसिकली करने के लिए कही। एंड ये 5 चीज़ें कौन सी हैं? वेल, नॉन वायलेंस, पहली चीज़ तो हमको हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। महावीर स्वामी बिलीव डैट वायलेंस इज़ द हाईएस्ट इविल ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। अगर हम लोग कुछ भी वायलेंट एक्टिविटी करते हैं तो ये इंसानी समाज की सबसे ख़राब चीज़ है अकॉर्डिंग टू हिम। देयर शुड नॉट बी वायलेंस ऑफ एनी काइंड, मतलब कहीं पे भी वायलेंस के लिए तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। एंड इवन अ स्मॉलेस्ट क्रीचर हैज़ ए राइट टू लिव, है ना, छोटी सी मक्खी से लेके बड़ा हाथी तो क्यों ना हो, सबको जीने का हक है। ओके, एंड इवन मेंटल वायलेंस शुड नॉट बी डन। प्रोटेक्टिंग एनिमल इज़ अ रियल ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मेंटल यानी एक तो होता है आप लोग लोगों को मारते हो, ठीक है। एक दूसरा तरीका ऐसा होता है जहाँ पे आप लोगों को परेशान करते हो, उनको मतलब बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। ओके, सो ये एक जो मेंटल टेंशन है, इसको भी इन्होंने वायलेंस की कैटेगरी में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है सेकंड पॉइंट, डेट इज़ कॉल्ड ट्रूथ। ये उनकी प्रीचिंग का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट इज़ वी शुड नेवर स्पीक लाई, हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, झूठ तो ऐसे भी नॉर्मली बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ बोल के फिर याद रखना पड़ता है क्या बोला था। वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, हमको बिना सोचे समझे तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भले झूठ ना बोलें लेकिन सामने वाले इंसान को बुरा भी लग सकता है। ओके, वी शुड एब्सटेन एंगर एंड फॉलो द ट्रूथ, हमको मतलब गुस्सा कभी आना नहीं चाहिए और हमको हमेशा सच्चाई के रास्ते पे ही चलना चाहिए। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन, और अगर हम लोग सच का साथ देंगे तो हम लोग हमेशा अच्छे रास्ते पे ही रहेंगे और हमको लाइफ में प्रॉब्लम जो होंगी वो कम आएंगी। ठीक है, चलो अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, अस्ते। अस्ते क्या होता है? लेट्स सी। एस्ट्रे भी बोल सकते हैं, एस्टे भी बोल सकते हैं, एनी हाउ। थेफ्ट इज़ द बिगेस्ट एविल। वी शुड नॉट टेक एनी बडी थिंग्स विदाउट हिज और हर परमिशन, मतलब चोरी करना। ठीक है, हम लोग किसी की भी चीज़ें को बिना उनकी परमिशन के नहीं उठाना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल घर में मेरा भाई है, उसका लैपटॉप है, लैपटॉप वो पर्सनली अपने पैसे से लेके आया है एंड वो यूज़ कर रहा है। अगर मुझे काम है तो मैं उसे बोलूँ मैं लैपटॉप ले लूँ, तो मुझे मना तो नहीं करेगा वो, है ना। शायद कर भी दे, वो उसकी मर्ज़ी, बट यूजुअली घर वाले अपने चीज़ों को यूज़ करने से मना नहीं करेंगे। आजकल तो मतलब पर्सनल फ़ोन आ गए हैं बस, अदरवाइज़ हम लोग घर की चीज़ें शेयर कर ही लेते हैं। सो परमिशन मांग के लिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, बिना उसके पूछे अगर हमने कुछ किया और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन शॉर्ट आपको कुछ भी चीज़ मांगनी है तो परमिशन लो। ठीक है, कोई पप्पा से ही पूछो कि पप्पा मैं ये चीज़ कर लूँ, डेट मीन्स आप परमिशन लेके लोगे तो इस सोर्स की आप लोग रिस्पेक्ट दे रहे हो सामने वाले को। ठीक है, एंटरिंग एनीबडीज हाउस विदाउट परमिशन इज ऑल्सो लाइक अ स्टेलिंग। तो जो लोग बिना खटखटाए नॉकिंग के बिना आ जाते हैं घर के अंदर, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट परमिशन लेनी चाहिए। ओके, अपने रूम में कोई पर्सनली कोई कैसी भी कंडीशन में हो सकता है, सो इट विल फील अनकम्फर्टेबल। बाई सेइंग सो ही ट्राई टू कीप द सोसाइटी एट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग। तो चोरी तो ऐसे भी करनी नहीं चाहिए, बिना किसी की परमिशन के किसी का कोई सामान यूज़ नहीं करना चाहिए, और कभी भी किसी के कमरे में जाओ तो नॉक करके जाओ ताकि सामने वाले को पता चले। ठीक है, से फॉर एग्जांपल जान देते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, नॉन पॉजेसिवनेस, अपारिग्रह। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेट्स सी। एंड सो
मैन शुड नॉट स्टोर गुड्स, ठीक है, पोजेशन, ऑर्नामेंट्स एंड क्लोथ बियॉन्ड his their requirement. Keeping the things as per the requirement reduce the collection of instinct of a person. Thing like grains reach up to the poor people, and this is was his important message. इंसान को कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपके पास एक कपड़े होने चाहिए एक लिमिटेड अमाउंट तक, पर आप पूरा का पूरा वार्डरोब भर दो, वो फिर नहीं, वो अच्छी बात नहीं है ना। कुछ लोग जानबूझ के, स्पेशली जो दुकान वाले होते हैं, रिटेलर्स, वो क्या करते हैं, बहुत सारा अनाज स्टोर करके रखते हैं, और जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसका प्राइस हाई होता है, तब वो उसको सेल करते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है ना, क्योंकि आप लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, है ना। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना सामान रखो, उतनी ही हमको चीज़ें करनी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस की थी, डेट इज़ कॉल्ड द ब्रह्मचर्य, ठीक है। ही स्पेसिफिकली टोल्ड जैन मॉक एंड नन्स टू ऑब्जर्व कैलिब्रेसी। ब्रह्मचर्य करना है, डेट मीन्स शादी नहीं करनी एंड ऑल डेट, ओके। सिर्फ भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना है। ये लास्ट वाला थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हार्श है, इफ़ वी कंपेयर द टुडेज वर्ल्ड। सो नो दिस, द त्रिरत्न, जिसको रत्न त्यागी मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ सम्यक विजन, सम्यक नॉलेज एंड सम्यक बिहेवियर। सम्यक हम ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस सेशन। सो एज यू कैन सी, प्रीचिंग्स में पहले नॉन वायलेंस आता है, सेकेंड पॉइंट ट्रूथ आता है, थर्ड अस्टे आता है, फोर्थ नॉन पॉजिटिवनेस आता है, एंड फिफ्थ वन इज द ब्रह्मचर्य। नाउ महावीर स्वामी एज अ ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर क्या है, लेट्स सी। आई थिंक अपनी इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, डन। नाउ महावीर स्वामी एज अ ग्रेटेस्ट रिफॉर्मिस्ट। महावीर स्वामी ऑफर्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। सो जितने भी ये रीति रिवाज हैं, इन सब का वो विरोध करते ही हैं, प्लस जो एनिमल्स की बलि चढ़ाई जाती है, सेक्रीफाइस दिए जाते हैं, इनके भी ये अगेंस्ट में ही थे, ओके। नाउ ही रिजेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया था। ही कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस इन द यज्ञ। तो इनका भी मतलब सेम ही था कि एनिमल्स को नहीं, मतलब यज्ञ में उनकी आहुति नहीं देनी चाहिए, उनकी बलि नहीं देना चाहिए। बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा कि एग्जैक्टली लड़ाई लड़ने से पहले भल्लाल देव है, वो एक मेल बफेलो को उसका सिर काट देता है, बट बाहुबली मना कर देता है, ओके। अगर खून की तलाश हो तो लो मेरा उगलता हुआ खून, ठीक है। सो सी दिस शोज कि इंसान के अंदर कितनी इंसानियत है। ही सेड डेट वुमन शुड बी गिवन इक्वल राइट। सो अगेन ही ऑल्सो इन फेवर ऑफ द वुमन इक्वलिटी। एंड आजकल तो वुमन इक्वलिटी है, हम लोग फॉलो भी करते हैं, बट पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। लाइक बुद्धा ही टू प्रीच्ड इन पीपल्स लैंग्वेज प्रकृत एंड अर्धमगधी। तो उस टाइम पे ये नॉर्मल सी लैंग्वेज थी जो हम लोग कम्युनिकेट किया करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज हम लोग इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को कॉम्बाइन करके समझाते हैं। एज यू कैन सी आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग इन हिंदी एंड मिक्सचर ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश विद मिक्सचर ऑफ हिंदी, एनी हाउ डेट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड उस टाइम पे प्रकृत और अर्धमगधी लैंग्वेज ज़्यादा चलन में थी। With his simple and the easy teaching, he changed people lives. उनकी बातें सुन के सच में बहुत अच्छा लगता था, और उनकी बातों को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव लाए, ठीक है। निर्वाह यानी उनका अंतिम समय। ही डाइड इन द पावापुरी एट द एज ऑफ 72। सो इनकी जो डेथ है वो 72 ईयर्स की एज में हो जाती है, ओके फ्रेंड्स। Now as you can see, there are only few lines are left, okay. In this way, about 2500 years ago got a new ideas, religious rituals and defilement were removed. So जैसा कि आप लोग देख रहे हो, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ये दोनों ऐसी महान शख्सियत थे जिन्होंने पर्सनैलिटीज़ थे जो आज से कुछ 2500 साल पहले इन्होंने एक सोसाइटी के अंदर कुछ नया आइडियाज़ लेके आए और
नई नई चीज़ें लेके आए, नई नई लोगों को बातें बताई, है ना। इन्होंने रिलीजियस रिचुअल्स को और सब मतलब बताया कि ये फालतू की झंझट में पड़ रहे हो, ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है। पीपल बिकम हिज फॉलोअर्स इन अ लार्ज नंबर, है ना। फॉलोअर्स मतलब इनको मानने वाले, इनको फॉलो करने वाले, इनको इनको मतलब अपना आइडल मानते थे, और ये जो कहते थे वो वही करते थे। ओके, वरना आजकल तो फेसबुक यूट्यूब पे फॉलोअर्स होते हैं। एनी हाउ, बोथ प्रीचर्स obliged people to adopt the path of peace and virtue. ओके, सो फ्रेंड्स, ये दोनों जो मतलब एक तरह से प्रीचर्स थे, जो मतलब लोगों के अंदर एक पॉजिटिव थॉट लाते हैं, लोगों को सोचने का तरीका बदलते हैं। इन दोनों ने शांति का उपदेश दिया पूरे समाज को, एंड दस दे प्रमोट वर्च्यू ऑफ सोसाइटी। ओके, सो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा। सो एज यू कैन सी, हम लोगों ने आप इस स्लाइड में ये देखा था कि जैन धर्म में महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म इस्टेब्लिश किया था, 24 तीर्थंकर से बना हुआ है। वेल, आपको कुछ नाम याद रखने हैं एंड दैट्स इट। फिर हम लोगों ने ये महावीर स्वामी जी का फ़ोटो है, सो 5.2। ओके, आपने देखा है कि इन्होंने बिल्कुल बॉडी पे कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए। तो जैन धर्म को मानने वाले जो साधु होते हैं वो बिल्कुल बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं रखते हैं। एक्चुअली कपड़ा पहनना उनके धर्म में ऐसा माना जाता है कि मोह पैदा करता है ना। तो जिस इंसान को कपड़ों का ही मोह ना हो, वो उस इंसान को क्या मोह हो सकता है, ठीक है। एंड ये वज्जी यूनियन से गणोत्थक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर त्रिशला देवी, ठीक है। सिद्धार्थ इनके फादर का नाम, त्रिशला देवी इनकी मदर का नाम, नंदीवर्धन इनके भाई का नाम था। इनकी शादी एक सुंदर राजकुमारी से होती है जिसका नाम यशोधरा था। एंड ऑफकोर्स इनकी डॉटर का नाम प्रियदर्शनी, डेट यू आर सपोज टू रिमेंबर। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। सेम गौतम बुद्ध, इन्होंने भी अपना घर जो है वो 30 ईयर्स ऑफ एज पे छोड़ दिया था। एंड इन्होंने एक भिक्षु की ज़िंदगी व्यतीत की, दैट मीन्स जो मांग के खाते हैं। ओके, एंड इन्होंने 12 साल तक 12 ईयर्स कंटिन्यूस नॉन स्टॉप पेनेंस किया। पेनेंस यानी तपस्या करना। ओके, एंड फिर इनको अल्टीमेटली ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। एंड जैसे इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब ये इनका नाम बदल गया। अब इनका नाम पहले वर्धमान हुआ करता था और अब ये महावीर बन गए। तो लोग इन्हें महावीर स्वामी भी कहा करते थे। इनकी प्रीचिंग थे जो अपनी हर सभा में ये कहा करते थे, अकॉर्डिंग टू हिम हमको हमेशा नॉन वायलेंस वाला रास्ता ही पकड़ कर चलना चाहिए। नॉन वायलेंस मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पे अत्याचार कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, बट मेंटल टेंशन भी ना देना। हम लोग लोगों को डराते हैं ना, तो डराना भी तो एक तरह से मेंटल, एक तरह का वायलेंस हुआ ना, जो हम लोग सामने वाले के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। सो उन्होंने इसके लिए भी मना किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमको एनिमल्स को भी नहीं परेशान करना चाहिए। पृथ्वी पर छोटे से छोटे जीव को भी जीने का हक है और हमको उनसे ये हक नहीं छीनना चाहिए। ओके, फिर इन्होंने बात की ट्रूथ की, सच्चाई की। तो हमको पहली बात तो कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, है ना। झूठ बोलने से हम हमेशा हमारा मन साफ रहता है, हमको एक सेटिस्फेक्शन फील होती है। ओके, अस्ते मतलब हम लोग किसी को भी कोई चीज़ें बिना परमिशन के यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसको सबसे ख़राब चीज़ माना जाता है। और किसी के भी घर में जाओ तो बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए। अगर आप किसी के रूम में एंटर कर रहे हो तो नॉक करके जाना चाहिए, ठीक है। फिर नॉन पॉजेसिवनेस अपारिग्रह, ठीक है। इसका मतलब इंसान को जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान करना चाहिए। उसको लग रहा है मेरे को 3 कपड़े सफिशेंट है। वेल, लॉकडाउन में हम लोग सब सीख चुके हैं, घर में 3 जोड़ी कपड़े हों तो भी पूरा लॉकडाउन निकाला है। यू कैन सी, ये टी शर्ट मेरी बहुत कॉमन है, एक ये वाली, एक ग्रे वाली और एक को ब्लैक एंड वाइट लाइन वाली। ये 3 जो नॉर्मल टी शर्ट्स है उसमें मैंने पूरा लॉकडाउन निकाला है ना। एंड नीचे 2 शॉर्ट्स, दैट्स इट। तो इंसान को जितनी ज़रूरत हो उतना ही चीज़ें रखनी चाहिए। एंड स्पेशली जो दुकान के रिटेलर्स होते हैं उनको जमाखोरी से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत होती है। एंड फाइनली इन्होंने कहा है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एक भिक्षु की ज़िंदगी जीनी चाहिए। महावीर स्वामी को हम लोग ग्रेटेस्ट रिफॉर्मिस्ट कहेंगे, क्योंकि उन्होंने रीति रिवाजों को
और एनिमल्स की जो बलि दी जाती है उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया था। एंड इनकी जो नॉर्मल जो शैली थी बोलने की वो प्राकृत या फिर अर्ध मगधी लैंग्वेज में हुआ करती थी। उनकी समझाने का तरीका बहुत ही कन्विंसिंग और सिंपल हुआ करता था, जिसकी वजह से इनको ईजिली लोग मानते थे और इसीलिए इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। इनकी मौत कब होती है? 72 ईयर्स की एज में। एंड पावापुरी उस जगह का नाम था। एंड ये दोनों गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी ने समाज को एक नया दिशा दिया, ठीक है, एंड लोगों की लाइफ बदल दी। नाउ देर आर सर्टेन 5 MCQ। सो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रीड करके सुना रहा हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू ब्रिंग Q&A सेशन फॉर दिस। सो वेयर डिड गौतम बुद्ध फर्स्ट प्रीच? ओके. वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन निर्वाहा? ओके. What is the name of Mahavir Swami's mother? Okay, Mahavir Swami. Done. And where is Mahavir Swami born? And in which language the Mahavir Swami preach people? I think अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको सारे आंसर पता होनी चाहिए. What was the main preaching of Gautam Buddha? Answer in short है. And what is the main preaching of Mahavir Swami? What were the 5 Mahavrats in Jainism? And there are few true or false as given. Both Buddhism and Jainism urge people to take path of the peace and non-violence. Okay. Buddha gave his first sermon at the Bodhi Gaya. Buddha had attained enlightenment in Sarnath. Okay. And give the correct answer. That means आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देने. What is the similarity in preaching of Gautam Buddha and Mahavir Swami? Very interesting question. And which evils were seen in Gautam Buddha time? तो उनके टाइम पे क्या क्या ख़राब चीज़ें देखने को मिलती थी. So friends, with this we are finishing our session. I like this effect. जैसे मैं ये स्लाइड पे आता हूँ तो स्किन अलग ग्लो करती है एंड देन कम्प्लीटली चेंज. ओके. सो आई गेस आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा. एंड Q&A सेशन विल गोइंग टू बी द मोस्ट फन पार्ट क्योंकि मुझे तो भी वो बहुत पसंद है. वेल, यू गाइस आर अमेजिंग. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय एवरीवन.